I think Divyam, we can start and you can just give a brief background of the today's session and also the basic details about the session. You can tell them and then we can start with the session. Good evening, everyone. Thank you for joining today's session on the Union Budget 2026, where we will be discussing the key amendments and the issues highlighted in the Finance Bill 2026. The Union Budget is presented every year on the 1st of February, and this marked the ninth occasion on which it was presented by the Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman. Former Finance Minister Mr. Morarji Desai holds the record with 10 budgets. Technically, the current Finance Minister has already crossed the number if interim budgets are to be included. But if we discount those, she's still chasing Morarji Desai and is just one budget away from catching him. During the course of the presentation, you may post your questions in the Q&A box and we will take them up towards the end of the session. To begin with, we shall take a brief overview of the Union Budget 2026 and its key implications on the Indian economy. For this segment, I would like to invite CA Naman Shimal, Managing Partner, Jain Shimal and Company. Thank you, Divyam. Thank you, everyone, to be present here in our annual budget discussion. Divyam mentioned that Madam Sitaram may only taken 9 and she may overtake, but I think in terms of number of minutes, she might have already overtaken any other finance minister. So I think that's what that matters, that whenever you give a chance, how much time you take on the podium. So that's just on a funny note. Let's start the discussion. I would say that this budget may not be called as a transformatory budget. It is more of a clarificatory budget, which many, at least on direct tax side, we would see that many clarifications are there on the procedural aspects. Many of the, I would say, case which are pending in Supreme Court, which were against the revenue, have been overturned retrospectively. So the whole flavor of the budget is not a big change budget, but more of transformatory, clarificatory tone. And you will see down the line that would have reflected in the changes. The another tone of the budget is also regarding Make in India. So a lot more emphasis is being given to invite foreign companies to come to India and maybe giving them some tax breaks, or let's say in transfer pricing, we will see giving them a lower safe harbor margin. That would have been also be the another tone of the budget. As usual, there are lot many changes, and devil always lies in the details. So we'll have to go through the important and the crucial changes which will make our understanding of the law a little different than what it was earlier. And I would say, we do this as an annual exercise, but nowadays, the way we saw a Trump tweet yesterday, and it completely changed the whole global scenario and how people were planning that they will have some of the operations outside India would set up and lower duty, and all went away in a day. So it's annual budget exercise. I think it's a too long period, and we see so many changes, maybe sometimes relief and sometimes more tougher changes in the act. GST is very fluid any which ways, but direct tax also we have seen nowadays interim budget, some major changes, some other clarification. So this annual budget exercise is just, let's say, once in a year, but we have seen so many changes during the year itself that in this volatile world, where one tweet can change everything, I think it's very, very important to keep ourselves abreast, and this session would help all of us to at least understand what the proposed changes are. So once again, thank you all of you to be here. And Divyam, you can now take over and invite our speaker to present the thoughts. Moving ahead, I now invite CA Keshav Gupta, Practice Leader, GST and Indirect Taxes, who will take us through the key amendments in indirect taxes. Thank you, Divyam. Thank you, Naman. So, rightly said that
जो जीएसटी पार्ट है दैट इज ऑलवेज इनटू हाइप, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे वो काउंसिल मीटिंग के थ्रू होते हैं, and those council meetings make sure that every amendment is done in a it is done in a unanimous way. It is a collective decision and then it is implemented into the law. So जीएसटी की थीम इस तरह की है कि कोई भी डिसीजन डायरेक्टली नहीं होगा, डिसीजन करने से पहले पूरा उसका डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद डिसीजन होगा, एंड दैट इज व्हाई जो जीएसटी रिलेटेड अमेंडमेंट्स होते हैं लॉ में, प्रपोज्ड लॉ है में चेंजेस प्रपोज्ड हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू द आउटकम्स ऑफ 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग. सो लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें जो चेंजेस सजेस्टेड थे उन्हीं को लेकर के कुछ एक्ट के अंदर चेंजेस प्रपोज करने थे, which could have been done only by way of finance bill. So those changes have been proposed in the GST Act. Secondly, important चीज की ये जो changes हैं इनकी applicability को लेकर के बहुत discussion रहता है that when they will be applicable. So yes, because GST एक ऐसी थीम है जिसके अंदर सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CGST एक्ट है प्लस स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट GST एक्ट है, सब में एक साथ चेंज होता है तभी कोई लॉ इंप्लीमेंट होता है इफेक्टिवली अक्रॉस इंडिया. सो अभी ऐसे ही है कि अगर आप पढ़ेंगे तो एज फार एज पॉसिबल एक वर्ड लिखा हुआ वहाँ पे कि दैट चेंजेस विल बी एप्लीकेबल एज फार एज पॉसिबल. जितना जब तक सारे स्टेट के लेजिस्लेशंस में चेंज नहीं होगा तब तक स्टेट जीएसटी एक्ट में भी चेंज नहीं होगा और तब तक ये जो चेंजेस है इफेक्टिव नहीं होंगे, एक्सेप्ट वन ऑफ द चेंज व्हिच इज रिगार्डिंग 101A सबसेक्शन 1A. सो वो एक नेशनल अथॉरिटी का केस है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स का उसमें रोल नहीं रहता है. So we'll be discussing all those changes which have been proposed in the act in brief, and rightly said by नमन की जो आजकल चल रहा है कि ट्रम्प का एक छोटा सा ट्वीट होता है that is making a very crucial role these days. So again coming to that part also कि ultimately गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी है जीएसटी के अंदर भी जीएसटी 2.0 करने के लिए. लास्ट ईयर आई एम श्योर आप लोगों को काफी याद होगा सब चीजों का रेट रिडक्शन, रेट रेशनलाइजेशन, काफी सब कुछ हुआ था. पर्पस वाज दिस ओनली दैट अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं जाके उस पर्टिकुलर इकोनॉमी है जो इकोनॉमिक हमारे लिए टर्बुलेंस हो गया है उसको कहीं ना कहीं हम जाके मीट आउट कर पाए, compete कर पाए. बट yes, that is a very maybe it is not that easy, it's not that quick, it will take time. So government is still trying and planning. So yes, let's start with the discussions on GST, but I'm sure my screen is visible and I'll try to make it full screen also. अभी I think ये full screen नहीं होगा. नहीं, अभी it's in इसको full screen से. Is it full screen now? अभी तो नहीं हुआ. Yeah, Yes. now it's full. ठीक है, great. Okay. So जो CGST और IGST एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हैं, try to just tabulate them, किस कैटेगरी में चेंजेस प्रपोज्ड है. So one important change in section 15 subsection 3 clause B, उससे रिलेटेड एक चेंज सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 में, बिकॉज बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. देन जो रिफंड के प्रोविजंस है उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर चेंजेस जिसमें आपको बताया नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उसको लेकर के कुछ स्ट्रीमलाइन की चीजें. एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इंटरमीडियरी का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट हैज बीन रीडिफाइंड अंडर IGST एक्ट. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस आई हैव क्लब्ड देम हियर. नाउ लेट्स बिगिन विद सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज B. So friends, before I discuss the change, let us understand the background कि exactly था क्या. और आई एम श्योर आप सब लोगों ने इस चीज को फेस कर रखा होगा कि हमेशा डिपार्टमेंट ये क्वेरी निकालता था ऑडिट्स में, स्क्रूटनी में, शो कॉज में कि अगर आपका सप्लायर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करी है तो आपको उसका आउटपुट टैक्स का रिवर्सल का रिडक्शन का तभी बेनिफिट दिया जाएगा अगर आपके इनपुट रिवर्सल हो गया बाय द सप्लायर. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो एक जनरल प्रैक्टिस है ट्रेड की, उसको लेकर के हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती थी कि भाई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में डिपार्टमेंट वाज आस्किंग एग्रीमेंट्स, क्योंकि लॉ इसी तरह से लिखा गया था कि भाई एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में प्री एग्रीड होना चाहिए. सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज भी पुराना पढ़ेंगे तो उसमें 2 कंडीशंस लिखी हुई. सो वन ऑफ द कंडीशन वाज कि एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट से ही आपका जो अगर एग्रीमेंट है तो ही आपको आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर कुछ भी देना पड़ रहा है तो जीएसटी का बेनिफिट उसमें तभी दिया जाएगा. सो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का मेरा ट्रांजेक्शन था, बिल पे जो डिस्काउंट कटा दैट इज ऑल फाइन, वहां पे डिपार्टमेंट कोई क्वेरी रेज नहीं करा था. बट अगर बिल रेज होने के बाद डील पूरी क्लोज हो गई है, माल का सप्लाई हो चुका है, फिर अल्टीमेटली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम किसी क्लाइंट ने सपोज टर्नओवर डिस्काउंट दिया सप्लायर ने बायर को, या कैश डिस्काउंट दिया किसी ग्रुप में, तो डिपार्टमेंट कहता था कि इसका सब एग्रीमेंट लाइए पहले. तो अगर एग्रीमेंट में प्री एग्रीड है तब तो हम आपको उसका बेनिफिट दे देंगे क्योंकि आप उसके ऊपर जीएसटी का वैल्यू भी कम कर रहे हो, अपना आउटपुट टैक्स कम कर रहे हो.
प्लस वो एक सेकंड कंडीशन और पूरी करवाना चाहते थे आपसे कि आप इसकी इनवॉइस टू इनवॉइस लिंकिंग करो, यानी कि जो क्रेडिट नोट है वो किस इनवॉइस लिंक्ड है, इसको आप लिंक करके बताइए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आपके सामने वाले पर्सन ने, रेसिपिएंट ने इनपुट रिवर्स कर दिया नहीं कर दिया, इसका भी हमको प्रूफ दीजिए। तो इसमें जो बहुत ही डेट्रीमेंटल कंडीशन थी विच वाज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल एज पर द ट्रेड प्रैक्टिसेस, और आई मीन सबको एक लाठी से हाँकने वाली बात थी, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो सकता कि हर बिजनेसमैन बहुत अच्छे फॉर्मल एग्रीमेंट्स रखेगा या इस तरह से पूरा बिजनेस करेगा। सो गवर्नमेंट वुड अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली हम अचीव कुछ नहीं कर पा रहे, सो दैट अचीवमेंट वाज नॉट पॉसिबल एंड there was a huge pressure on the government also कि इसको हटाया जाए। And now they finally come up with the change in the proposed change in the law which says कि आपको एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, अगर आपने सिंपली उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया है और क्रेडिट नोट जो है उसके बेसिस पे सामने वाले पर्सन ने अपनी इनपुट रिवर्स कर दी है, इन दैट केस यू विल बी अलाउड टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का रिडक्शन। सो दिस इज अ वेरी वेलकम चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल बिजनेस और रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम था उसको समझते हुए गवर्नमेंट ने चेंज करा है। सो अब जब भी ये चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगा उस दिन के बाद से आई थिंक ये प्रॉब्लम जो हमारी थी कि डिस्काउंट आपने दिया तो उसके लिए एग्रीमेंट दिखाइए पहले, और ये भी डिस्कशन होते थे काफी कि यार एग्रीमेंट तो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, मल्टीपल थिंग्स, वैल्यूएशन को लेकर के इसमें बहुत प्रॉब्लम होता था, वो सब चीजें खत्म हो गई। नाउ द सिंपल थिंग इज दैट आपका अल्टीमेटली एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट वेव ऑफ हो गया है, बट स्टिल वन कंडीशन प्रिवेल्स विच इज रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द रेसिपिएंट। नाउ दिस इज अगेन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट प्ले करा, बिकॉज दे डोंट वांट कि हम किसी भी तरह से आउटपुट टैक्स का रिडक्शन अलाउ कर दें अगर आपके रेसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं करी है तो। बट फ्रेंड्स माय व्यू इज दैट कि अल्टीमेटली यहाँ पे इस कंडीशन को डाल के, जो पहले भी एक समस्या थी कि आपको पता होगा पहले बीच में एक सर्कुलर आया था कि आप बोर्ड ने अलाउ करा था कि भाई आप जो है सामने वाले रेसिपिएंट से सर्टिफिकेट ले लीजिए, उनके सीएस सर्टिफिकेट ले लीजिए कि उसके रेसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दी है। पर वो सब चीजें क्या है कि डिपार्टमेंट ने खुद ने उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया था, सीबीएसई ने रिसेंटली उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया है। नाउ हाउ दिस थिंग विल बी मॉनिटर्ड, दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू सी, व्हिच विल बी टेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि आपके सामने वाले रेसिपिएंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करी नहीं करी। एग्रीमेंट हट गया, बहुत अच्छी बात है, बट आईटीसी रिवर्सल उसने करा नहीं करा, वो अभी भी कंडीशन प्रिवेल करेगी, और उसका मैकेनिज्म क्या है वो अभी क्लियर नहीं है। बिकॉज आपको पता होगा कि जीएसटी के अंदर एक आईएमएस पोर्टल होता है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, so that invoice management system is voluntary, it is not at all mandatory. So since it is voluntary, अगर मेरा रेसिपिएंट आईएमएस सिस्टम फॉलो कर रहा है तो मुझे दिख जाएगा कि क्रेडिट नोट उसने एक्सेप्ट करा, यानी कि उसने अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर ली। बट अगर सपोज वो वॉलंटरी वाले ऑप्शन में जा रहा है, उसको आईएमएस मैंडेटरी नहीं है अभी उसके लिए, और सबके लिए आईएमएस मैंडेटरी नहीं है, तो अगर वो ऑप्ट करता है दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो बाय आईएमएस, सो इन दैट केस आपके लिए ये पता लगाना कि आपके सामने वाले रेसिपिएंट ने इनपुट रिवर्स करा नहीं करा, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन अभी भी प्रिवेल कर रही है। But yes, one good thing, one bad thing. So one good thing is कि existing agreements की requirement को खत्म कर दिया गया, and जो एक practical scenario उससे align किया गया। Then if we see section 34 subsection 1, so section 34 subsection 1 talks about credit note only. तो ये बोलता है कि आप credit note issue करके अपनी output tax liability कम कर सकते हैं, और output tax liability आप कम करेंगे तो आपकी जो सामने रेसिपिएंट उसको इनपुट रिवर्स करनी है। पूरा क्रेडिट नोट का जो मैकेनिज्म है सेक्शन 34 में जीएसटी लॉ में प्रोवाइडेड है। सो सेक्शन 34 के अंदर भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज की जरूरत थी, बिकॉज अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज भी जो हमने भी पहले डिस्कस किया है, दैट हैज बीन लिंक्ड विद सेक्शन 34 सबसेक्शन 1। सो नाउ 34 सबसेक्शन 1 के अंदर भी कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट प्रपोज है। यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो आई थिंक सब लोगों को ध्यान रखने की बात ये कि अब ये जो पर्टिकुलर डिस्काउंट है विच इज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट नोट इशूड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, उसके लिए भी क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट हो गई है। बिकॉज अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो 34 सबसेक्शन 1 के बाद जो उसकी कंटिन्यूस रीडिंग है वही बोलती है कि क्रेडिट नोट जो है वो अप टू 30 नवंबर इशू हो जाना चाहिए, 30 नवंबर तक वो क्रेडिट नोट इशू हो जाना चाहिए, प्लस 30 नवंबर ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं उसके अगले फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर तक क्रेडिट नोट इशू रहना चाहिए, तो आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। और तो ही अल्टीमेटली उसमें भी एक कंडीशन है कि आपका इनपुट रिवर्सल मैंडेटरी है बाय द रेसिपिएंट। सो दोस कंडीशंस आर स्टिल प्रिवेलिंग। नाउ सिंस 15 subsection 3 clause B has been imbibed in section 34 subsection 1, that is why उन पर्टिकुलर क्रेडिट नोट्स के लिए भी एक टाइम लिमिट जो है वो एप्लीकेबल हो गई ऑटोमेटिकली, एंड 34 सबसेक्शन 1 में
और 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी की जो हमको भी एग्रीमेंट एक तरह से वेवर का बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने, विच इज वेरी वेलकम मूव, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। उसमें बस थोड़ा सा फ्लिप साइड ये कि उस क्रेडिट नोट को इशू करने का टाइम लिमिट अब तय हो गया। सो इन एनी विच वेज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से दैट यू कंप्लीट योर ट्रांजेक्शंस, you do your transitions in the financial year and try to conclude them by the end of November of next financial year. That is what actually they're wanting you to do. Maybe reality में वो transactions practical world में इस 1.5 साल की जगह 2 साल लगते हो, कभी कभी हो सकता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो होता है वो तय होने में, एग्री होने में टाइम लग जाता है। ऑल दोस थिंग्स प्रिवेल, बट स्टिल गवर्नमेंट इस कंडीशन में जो प्रेजेंट लॉ बनाया है उसमें वो कह रहे हैं कि नवंबर तक आपको कंक्लूड करना रहेगा। सो वी हैव टू सी हाउ दिस इज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, बट राइट नाउ द लैंग्वेज ऑफ लॉ सेज दिस थिंग ओनली। देन अच्छी बात है कुछ कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, now moving to the next part which is refunds. So inverted duty structure के जो refunds होते हैं उनमें शुरू से बात चल रही थी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इन्वर्जन एज मच एज पॉसिबल। एंड आई एम श्योर आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मेरी वजह से नहीं हो रहा है। सो आई मीन जैसे आप समझेंगे तो एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेस में रिफंड मिलता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं तो आपको रिफंड मिलता है, तो वो मेरे एक्ट से हो रहा है बिकॉज आई एम एक्सपोर्टिंग समथिंग, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग रिफंड। बट व्हेन इट इज अ केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जहाँ पे मेरे इनपुट्स का रेट है ज्यादा, आउटपुट जो मैं बेच रहा हूँ उसका रेट कम है, वो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, वो गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। तो गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से मेरे इन्वर्जन क्रिएट हो रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी इस इन्वर्जन को कम से कम करने की, लास्ट जीएसटी 2.0 में इसको बहुत हद तक कम कर दिया गया। तो इसलिए उस समय बात यह कि जब ये मेरी वजह से कुछ हो ही नहीं रहा और गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, सो इन दोस केसेस देयर शुड बी अ प्रोविजनल रिफंड अलाउंस, प्रोविजनल रिफंड प्रोवाइड करने का ऑप्शन होना चाहिए। अर्लियर this provisional refund option was available for just for export of goods and services का जो refund होता है उसके लिए, but now this provisional refund option has been implemented, proposed to be implemented for inverted duty structure refund cases also. So अगर अपन language of law से जाएं तो अब 90% refund आपका within 3-4 days डिपार्टमेंट को सैंक्शन करना रहेगा प्रोविजनल बेसिस पे, जब भी आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड लगाते हैं तब। सो कैश में इंप्रूव होगा। सेकेंड, एक लॉ में अनॉमली थी कि एक कंडीशन थी लॉ में कि जो कहती थी 15(4) सबसेक्शन 14 में दैट 1000 रुपए से नीचे का अगर आपका रिफंड होगा तो आपको रिफंड मिलेगा ही नहीं। सो दिस वाज हैम्परिंग बिजनेस ऑफ मेनी स्मॉल टैक्स पेयर्स जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज कर रहे हैं, ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं, उनके छोटे से शिपमेंट्स हैं। तो उसमें क्या है, अगर वो आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और उनका आईजीएसटी का वैल्यू ही सपोज करें आउटपुट पे अपना 1000 रुपए से कम रहा है, तो उस सिचुएशन में उनको रिफंड डिनाई हो रहा था। नाउ दिस हैज बीन टेकन केयर, और जो 1000 रुपए वाली कंडीशन है कि 1000 रुपए से नीचे का रिफंड अगर आपका तो आपको नहीं मिलेगा, इट मींस यू कैन नॉट अप्लाई दैट रिफंड, यू कैन अप्लाई बट गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू दैट रिफंड। सो इन दैट केस उस पर्टिकुलर कंडीशन को एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आईजीएसटी पेड पेमेंट ऑफ आईजीएसटी जो होता है, आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, उससे हटा दिया गया, व्हिच इज अगेन अ वेलकम मूव। नाउ मूविंग टू द इंटरमीडिएट पार्ट, again important change, and this has been made in IGST Act because ultimately इससे बहुत बड़ा बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। एंड आई एम श्योर काफी सारे आपने जजमेंट्स भी देखे होंगे, भी रिसेंटली आए थे जिसमें था कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंटरमीडिएट को लेकर के काफी चर्चा थी, काफी बहस थी कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी या इंटरमीडिएट होगी। द सिंपलर टर्म्स में समझे तो इंटरमीडिएट वो आदमी है जो दो पर्सन्स के बीच में, एक सप्लायर है और रेसिपिएंट, उनके बीच के बिजनेस या कह सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को फैसिलिटेट कर रहा है। पहले ये था कि इंटरमीडिएट की जो प्लेस ऑफ सप्लाई थी वो होती थी लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि अगर अज्यूमिंग मेरा इंडिया में बैठा हूं और मेरा जो रेसिपिएंट है वो आउट ऑफ इंडिया बैठा है, तो इन दैट केस मेरी सर्विसेज पे बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी तो जीएसटी पे करना पड़ रहा था। और इसको लेकर के बहुत डिस्प्यूट था कि भाई इंटरमीडिएट अल्टीमेटली फॉरेन करेंसी भी ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उसको जीएसटी इंडिया में फिर भी पे करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा था। सो दिस हैज बीन टेकन केयर। Now the place of supply for intermediate services lies into default provision which is recipient of service, और जैसे वो recipient of service शिफ्ट होगा तो अब मेरे केस में जो सर्विस सप्लायर है इंटरमीडिएट वो इंडिया में है, सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया होगी और फॉरेन करेंसी आएगी तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का बेनिफिट मिलेगा। तो क्रॉस बॉर्डर जितने भी ट्रांजेक्शन चल रहे हैं उनमें डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, इट इज गोइंग टू गिव अ बेस्ट ऑफ द बेनिफिट। बट इसका फ्लिप साइड एक और है कि सपोजिटली बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें डिपार्टमेंट, जिसमें होता ऐसा था कि जो मेरे बिजनेस को बढ़ाने वाला जो इंटरमीडिएट जो होता था, ब्रोकर होता था, वो आउट ऑफ इंडिया बैठा होता था। तो उन केसेस में हम ये बोलते हैं कि जब वो आउट ऑफ इंडिया बैठा है और उसका लोकेशन ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया है, तो उस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज पे इंडियन रेसिपिएंट को नहीं पे करना पड़ेगा।
तो अब ये हो गया कि भाई बिकॉज इंटरमीडियरी आउट ऑफ इंडिया बैठा है और सर्विस रेसिपिएंट इंडिया के अंदर बैठा है, तो इंटरमीडियरी की जो एक्सपोर्ट कमीशन हम देते हैं, अपन अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, एक्सपोर्ट कमीशन जो हम आउट ऑफ इंडिया पार्टी को दे रहे हैं, उस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में हमें भी देना पड़ेगा एज अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई उसका चेंज हो गया. सो दिस हैज बीन टेकन के जस्ट टू इंश्योर कि जितने भी लीगल लिटिगेशंस थे विद रिगार्ड टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरमीडियरी वो सब हटा दिए जाए. एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स इसके अंदर कि इस पर्टिकुलर रूल को ओमिट करने की बात की गई है, यानी कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में जो क्लॉज बी है which was the previous clause, उसको ओमिट करने की बात की है. Now what is the effect of this omission? ये हमें देखना पड़ेगा कि ओमिशन को रेट्रोस्पेक्टिव केसेस के अंदर भी एप्लीकेबल करना चाहेगा, ये प्रोस्पेक्टिव होगा, बिकॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेज दैट वंस something is omitted from law, it is always deemed to be omitted as if it was never existing. It is a principle of law, how you read the law. So अभी जो करंट लैंग्वेज है वो ये बोल रही है कि ओमिट करने की बात है. अगर ओमिट होता है और थोड़ा सा अपन इसका अगर सपोज इफ somebody has a good case and there are fair chances of litigation, तो maybe we can take a call that it should be applicable for retrospective period also, not just the prospective period जिसमें हम जिस दिन से एप्लीकेबल होगा. सो ये जितने भी बंदे भी प्रोविजंस पड़े इन सबका जो भी डेट होगा नोटिफाई होगा, उसके बाद ये चेंजेस इफेक्टिव होंगे. लास्ट चेंज व्हिच has been decided and which has been given a date that it will be effective from 1st of April 2026 is National Appellate Authority for Advanced Ruling. So friends, I'm sure हमको पता होगा एडवांस रूलिंग एक ऐसा टूल है जीएसटी के अंदर जिसकी कोई मतलब जिसकी जितनी सैंटिटी थी, जिस हिसाब से वो क्रिएट किया गया था, जिस लॉजिक से, वो सैंटिटी खत्म हो चुकी है. बिकॉज मल्टीपल एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज मल्टीपल एडवांस रूलिंग दे रही है. आंध्र प्रदेश में सेम मैटर पे आपको मिल जाएगी 4 एडवांस रूलिंग, सबके अलग अलग जजमेंट है. राजस्थान में मिल जाएगी आपको, कोई कंसेंसस नहीं है, एक मैटर पे 4 तरह के व्यू पॉइंट एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज दे रही है. सो देयर वाज अ नीड कि भाई इन सबको रिकंसाइल करने के लिए एक नेशनल अथॉरिटी बने जो बताए कि फाइनली क्या अंडरस्टैंडिंग है. बिकॉज एडवांस रूलिंग आपको पता होगा ना कि द पर्सन हु इज टेकिंग एडवांस रूलिंग उसके ऊपर वो बाइंडिंग है और दूसरे एसएससीज भी उसको यूज कर सकते हैं अगर उसके फेवर में है तो. बट डिपार्टमेंट उसको मानेगा ही मानेगा, मैंडेट है डिपार्टमेंट पे. तो डिपार्टमेंट के पास भी कंफ्यूजन था कि हम एक एडवांस रूलिंग कह रही है एक मैटर पे कि नहीं ऐसा लागू हुआ, दूसरा एडवांस रूलिंग उसी से मैटर पे करिए कि अपोजिट व्यू है. तो देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन. दैट इज व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. अब बिकॉज वो नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनेगी फ्यूचर में, इसलिए अभी ट्राइब्यूनल जो हमारा बनने वाला है GST-80 उसको ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दे दी गई है और सेक्शन 101A सबसेक्शन 1A इंट्रोड्यूस कर दिया गया लॉ में, विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2026 itself. और इसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रोविजन है सारे मतलब आई मीन वो पूरा प्रोसेस को एक तरह से इंप्लीमेंट कर लिया गया. तो ट्राइब्यूनल जो हमारा होगा प्रिंसिपल बेंच ट्राइब्यूनल की, वही एडवांस रूलिंग नेशनल अपीलेट अथॉरिटी को एडवांस रूलिंग कहलाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. आई एम श्योर चेंजेस काफी लिमिटेड चेंजेस होते हैं जीएसटी के, बिकॉज हमारा तो जो मैं कहता हूँ मतलब इफ आई कीप ऑन टॉकिंग कि हमारा तो जो बजट होता है वो एक साथ ही पूरा इकट्ठा आ जाता है. वो बजट मतलब इकट्ठा नहीं आता, सॉरी, वो बजट पूरा मल्टीपल टाइम्स में एक साल के अंदर इतनी बार आता है कि आपको कुछ 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 मिलता रहता है. तो टू माई अंडरस्टैंडिंग अभी तक का तो सबसे छोटा बजट है इनडायरेक्ट टैक्सेस का जीएसटी का. बिकॉज जब जीएसटी 2.0 आया था, 2.0 जब आया था 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, दैट वाज द बिगेस्ट वन. एंड सो उन सब चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है. एंड दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी. एंड थैंक यू. Divyam? Yes, sir. I would like to invite C. Harshita Darewal, partner cross-border transactions, who will present the amendments relating to transfer pricing. Thank you, Divyam. I'll just share my screen. Let me know once it's visible. Yeah, we can see it. It's visible, yeah. Okay. So let's start with the updates related to transfer pricing brought in by the Union Budget 2026. So there were not just a minute, some issue with my, yeah, okay. So there were not too many updates with reference to transfer pricing. There were 4 major amendments. We'll cover each one of them. So the first amendment is with reference to the safe harbor rules. So if we talk about safe harbor rules specifically to the IT sector, there were various
categories of IT services, for example, software development, IT-enabled services, KPO, R&D, which were treated separately in the previous regime. However, this is a very welcome move which has been brought in by the budget 2026, wherein all these services are explicitly consolidated into information technology services, so that there is no issue of mistreatment and maybe a confusion in the industry of how you are benchmarking different services. And a safe harbor margin of 15.5% has been bought in uniformly. Previously, the safe harbor margins ranges from 17 to 24%, which differ according to the different categories of services. But this budget has, brought it down to 15.5%. The threshold has also been increased from 300 to 2,000 crores. And the approval process has also been automated without the intervention of any officer. And one more change with respect to this is that now you can take the benefit of safe harbor rule consecutively for 5 years if you opt for up to 5 years, irrespective of the yearly procedures that you have to do in the previous regime. Moving on to the next point, this is with reference to the foreign cloud services. So data centers, which are foreign global cloud services using the Indian data centers. So they have been allowed a full tax holiday of up till 2047. However, such companies must deliver services to Indian customers via Indian reseller entities only. And a safe harbor margin of 15% has also been introduced to the reseller entities when they are providing services to the Indian related parties. Next up is the electronic manufacturing sector. So safe harbor has been recently introduced in the electronic manufacturing sector as well. So if there is a non-resident entity which is engaged in supplying electronic manufacturing supply chain services, safe harbor of 2% of the invoice value has been introduced, and which results in an effective tax rate of 0.7%, which is significantly lower as compared to the other tax jurisdictions. This was all about safe harbor. Moving on to the advanced pricing agreements. So one very welcome change, that is with reference to the return filing of the associated enterprise who is affected from that APA implementation. So earlier what used to happen is that only the advanced pricing application applicant is eligible to file the revised return. However, in the present budget, they have, bought this symmetry to allow the AE as well to file revised return up to a period of 3 months from the end of the month of signing of APA. And this will be applicable for all the APAs which are entered post 1st April 2026. Next up is the fast tracking process for the unilateral APAs. So previously there was no fixed time limit for APAs. So which caused unnecessary delays in getting the results. Now the time limit has been fixed to 2 years, which can be extended max to 6 months for the APAs for IT service sector. Last point is with reference to the computation of 60 days period for filing for passing of the TPO order, not last, technically second last. So what happens generally in an assessment proceedings, wherever an assessment is there under section 92 CA and it involves transfer pricing cases, the case has been referred by the AO to the transfer pricing officer, and the transfer pricing officer has the time limit to give his order with respect to that assessment 60 days prior to the due date of section 153B. However, a lot of disputes have recently arose in calculation of that 60 days period. Some judgments, for example, in the case of Pfizer by Madras High Court, they have given that the limitation date should not be included while calculation of the 60 days. However, this controversy has been put to an end, and new dates have been given. Just okay.
Yeah, so this amendment now expressly provide that the limitation date is to be included while calculation of this 60 days. You can see the chart on the screen, which has clarified via the introduction of a new section 92 CA3AA as to how the 60 days period would be calculated. So if in a non-leap year, 31st March is the limitation date, then the cutoff date by which a TPO order should come is 30th January. In a leap year, the date should be 1st January. And in a normal 31st December, when the limitation date is 31st December, the TPO order should come by 1st November. So this is a retrospective change which will apply from 1st June 2007. So that means to all the pending cases which are currently before the TPO, these dates these dates and this new section will apply to that as well. The last change in transfer pricing is with reference to the penalty for late filing and non-filing of Form 3CB. So earlier there was a flat fee of penalty basically of 1 lakh for the late filing or maybe non-filing of Form 3CB, which has now been reclassified as fees instead of penalty. And the fees would be charged on the basis of a graded system. It can be 50,000 or 1 lakh depending upon the period of the delay. So these were the major changes that were brought in with reference to transfer pricing. Thank you, Harshita ma'am, for throwing light on TP amendments and Keshav sir for the indirect tax amendments. If anyone has any questions at this point, they can post it in the Q&A box and we will take them up towards the end. Next, I invite CA Naman Balu, Partner Direct Taxes, who will explain the key amendments and changes in direct tax provisions. Thank you, Just before Divya. Naman speaks, just one point I want to mention regarding that fee versus penalty. We always used to see that this penalty, even if we had a delay for months, penalty was not levied, and we could have said that, okay, there was some issues, there were interruption at the client place, or the CA was not available, something of that sort, and penalty was most likely not levied in such cases. However, when it is now converted to fee, there would be a mechanism where you will not be able to file this up unless you pay that fee. So though the amount has reduced, there are more chances that the fee would be payable in practical terms rather than the penalty we've been levied, because you would have to pay that fee and then only you may be like, if something happens in ROC something, we would have to see that. But typically, I think that would be the thing. That is what I wanted to mention, that though it appears to be that the penalty is the amount is reduced, but there would be more application of it. That I think we need to be more cognizant of the fact. Sorry, Naman, for taking that interruption, and now you can take it forward. So I think like we started in the beginning, so I'll just keep it in Hindi, English, however we are comfortable. I'll just keep it accordingly. So जो नमन सर ने स्टार्टिंग में कहा that like there have been more of a retrospective amendments or clarifications rather than just a new amendment, because as we all know last year we got the new Income Tax Act 2025, so it was never expected कि कुछ major change होने वाला है, but since तो भी काफी ऐसे changes हमको लगा था, because on a Sunday morning we were not expecting कि बजट में कुछ ज्यादा होगा, so it was a more of a relaxed thing कि जो हम बैठे थे, but as we are looking at it काफी changes ऐसे हुए हैं which will affect many of the people, especially जिनको जो लोग litigations face कर रहे हैं या जो लोग they are already into litigations, तो direct tax में भी वैसा ही कुछ हुआ है. Just share my screen and let's have a look at what are the different litigation different amendments in direct tax. Just a moment. Is my screen visible? Yes, it is visible. Okay. Yes. Yes. So now let's go through the amendments in the direct tax thing that have been applicable, and इसमें आपको ये ध्यान रखना है that there have been various amendments. कुछ amendments हुए हैं जो Income Tax Act 1961 में किए हैं, कुछ amendments हुए हैं जो Income Tax Act 2025 में किए हैं. We have mentioned it in our slide कि कौन से amendment किस वाले section में किए गए हैं, किस वाले act में किए गए हैं. So let's have a look at all of those. तो हमने जो इसके अंदर cover किया है, we have covered वेरियस थिंग्स सच एज ड्यू डेट्स, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में क्या चेंज हुआ है, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में क्या चेंज हुआ है, एनआरआई टैक्सेशन में कुछ चेंज हुआ है, पेनल्टीज में चेंजेस हैं, टीडीएस में है, एंड सम अदर माइनर अमेंडमेंट्स. तो इस तरीके से हमने इसको कवर किया है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट अमेंडमेंट विच इज विथ रिगार्ड टू द ड्यू डेट्स. तो
जो हमने सबसे पहले देखा था, जो आई थिंक 10-15 साल पहले तक भी होता था, देयर वर डिफरेंट ड्यू डेट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलिंग्स। जैसे नॉर्मल जो सैलरी वाले लोग थे उनके लिए फाइलिंग डेट अलग होती थी, बिजनेस के लिए अलग होती थी, ऑडिट्स के लिए अलग होती थी, कंपनीज के लिए अलग होती थी। तो अभी इन्होंने क्या किया है, ऑल्दो इन्होंने कंपनीज को और नॉर्मल ऑडिट्स को अलग नहीं किया है, बट स्टिल दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डेट इन द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जहां पे व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव नाउ सेड दैट एनी पर्सन हु इज रनिंग अ बिजनेस and who is not getting their books of accounts audited or their partners, correct, so they have to now file the return of income till 31st of August. So उनके लिए वो ड्यू डेट बढ़ा दी गई है। इनके अलावा जो भी नॉर्मल असेसीज हैं जिनको ये ऑडिट और ये सब नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, दे विल हैव टू फाइल इट बाय 31st of July. So now a trust, a normal charitable trust जिसकी ऑडिट नहीं हो रही, जिसका कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, विच इज लायबल फॉर ऑडिट, सो दे हैव टू नाउ फाइल द रिटर्न टिल 31st of July. If any of the persons are conducting business or profession like a partnership firm or anyone, then they have to, and they are not getting audited, तो उनको 31st of August तक फाइल करनी है। कंपनीज हो गई या और कोई ऑडिट वाले पार्टनर्स हो गए या वो हो गए, उनको फाइल करनी है 31st of October तक। एंड द अदर पर्सन जिन लोग ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उनको फाइल करना है 30th of November तक। सो दिस इज लाइक कि अगेन देर आर मल्टीपल अमेंडमेंट्स और मल्टीपल ड्यू डेट्स नाउ। तो जो हमको थोड़ा अगस्त खाली खाली मिलता था, शायद थोड़ा टाइम मिल जाता था फॉर सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, वो आई थिंक और थोड़ा सा हमको टाइम कम मिलेगा, बिकॉज although it was a time कि हम बोलते थे रिलैक्सेशन है, बट नाउ वी सी दैट देर आर वेरियस ड्यू डेट्स, एंड अकॉर्डिंगली अगर हम इसके साथ अगर देखें तो ट्रस्ट, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, उनको जो फॉर्म 10 भरना होता है, फॉर्म 9A भरना होता है फॉर एक्यूमुलेशन, वो सब भी 31st August को ही ड्यू होगा। सो नाउ देर आर मल्टीपल ड्यू डेट्स इन दिस टाइमलाइन, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट तारीख पे तारीख चले जा रही है, एंड वी आर नॉट एबल टू कम अप विद द टाइम की जब हमको शायद रिलैक्सेशन होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जून और जुलाई we will be filing returns till November or October. So that's a long tenure to file various kinds of returns. And mind it that this amendment has been taken place in Income Tax Act 1961. So जो इस साल की अभी हम रिटर्न भरेंगे इस जुलाई में भी, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। Now coming to another amendment, which is with regard to revised return mechanism. Now in the income, earlier we used to know, before 2-3 years there was a provision wherein you could file your revised return or belated return till March 2020, March 31st March of the assessment year. However, that was reduced till December, stating that the people needs to file the return by December, so that the CPC can get time to process it quickly, and therefore the assessment also could start on time or anything, or the proceedings can be done within due time. However, everyone was facing an issue, because since the belated return was being filed till December, they were not in a position कि अगर उनको वापस कुछ रिवाइज करना हो, या even in a situation where the companies or the transfer pricing people are filing the return in November, they were just getting 1 month to check and file their revised return. So now they have come up with another mechanism wherein they have mentioned that अगर किसी का भी ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न दिसंबर तक उन्होंने फाइल कर दिया है, सो दे विल हैव एन ऑप्शन टू रिवाइज इट। अगेन यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, दैट इज ओनली विद रिगार्ड टू फाइलिंग ऑफ द रिवाइज रिटर्न। इसमें कहीं भी बिलेटेड रिटर्न की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो जो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आपने दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल किया या ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। So now if anyone is filing a revised return from January till March of the assessment year, तो उसको उसके अंदर दे विल गेट अ ऑप्शन कि दे कैन पे अ एडिशनल फी। जितनी हमारी लेट फीस लगती है 1000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली, बिलो 5 लाख होता है तो 1000 लेट फी लगती है, अबव 5 लाख इनकम होता है तो 5000 लेट फी लगती है। तो वही सेम फी इन्होंने 234I में भी इंट्रोड्यूस कर दी है, एंड दे कैन पे द फीस एंड फाइल द रिटर्न। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है सर कि whenever a person has filed a belated return, तो उसने कुछ ना कुछ लेट फी फाइल की होगी, एंड अगर वो उसको वापस रिवाइज करना चाहता है, तो दे विल हैव टू पे द लेट फीस इन 234H एज वेल एज अनदर फी फॉर रिवाइजिंग द रिटर्न इन 234I। सो ये दो टाइप की फीस उनको लग सकती है, तो वी नीड टू बी वेरी श्योर when we are filing a revised return in relation to a belated return. Now another update with regard to filing of updated return in relation to a reassessment under section 148. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपडेटेड रिटर्न की। अपडेटेड रिटर्न जो टूल हमको दिया गया था, that was the tool that was
being used ki if someone has forgotten to give any information of any income and they want to voluntarily pay tax on it with an additional tax, they were allowed to do so. However, there was a situation wherein, as we all know, the updated return can only be filed if you are having any tax payable. You cannot file an updated return to claim any refund, or you cannot file an updated return without any tax payable for a 2.5 lakhs or 3 lakh worth of income, correct? So now what they have done is that now they have given an option to increase the horizon. They have given another option wherein if you're reducing your loss, correct? So let's say, for example, you had filed a return with a 10 lakh worth of loss. Now you're reducing that loss from 10 lakhs to 8 lakhs. Correct. So what you can do is that you can file the updated return for reducing this loss, because technically by doing this you are giving your income, you're offering some income to tax. Although the tax is might not be paid because of this, because you are still in a loss. However, this option has been allowed wherein a person can file a return wherein there is a reduction of loss from the original return. This is one amendment in relation to updated return. Second amendment is that an updated return was not allowed to be filed in a case जहाँ पे आपका assessment already ongoing है. So that was the concept of updated return, that you can voluntarily disclose. But अगर आपका assessment proceedings या कोई भी और type की proceedings आप पे चल रही है, so you cannot file an updated return. Now they have made a relaxation in that, wherein they have said that you can file an updated return in relation to 148 notice. एंड अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 148 के प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट जो रिटर्न भरना होता है वो भरने की जरूरत नहीं है. हाउएवर, यू हैव टू पे एन एडिशनल टैक्स ऑफ 10%. ठीक है, तो जो भी इनकम आप एडिशनली डिस्क्लोज करेंगे उस अपडेटेड रिटर्न में, उस पे आपको जो नॉर्मल आपको स्लैब रेट के हिसाब से जो एडिशनल टैक्स बताया गया है, जो आपका 25, 50, 60 ये अलग अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स है, उसके ओवर एंड अबाउ you have to also pay another 10% tax if you are filing the updated return in relation to notice under section 148. अब इसका implication क्या है वो हम आगे देखेंगे, जहाँ पे what they are trying to do is that they are trying to take the additional tax from you and they are trying to reduce your penalty. वो हम आगे देखते हैं कैसे penalty में इसका इफेक्ट आएगा. बट यू नीड टू बी श्योर कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं अगर 148 के नोटिस के अगेंस्ट, then you will have to pay another 10% tax in addition to what you are normally paying for an updated return. Now coming to amendments in shares and securities transaction. इसमें अगर हम देखेंगे, सबसे पहला डिविडेंड अर्नर्स के लिए इट्स लाइक कि पहले जो थोड़ा बहुत उनको डिडक्शन मिलता था वो डिडक्शन भी उनको नहीं मिलेगा. सो दे आर नाउ इन वेरी मच पेन, एज यू कैन सी. तो इसमें हुआ क्या है अमेंडमेंट के अंदर, दिस अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू इनकम टैक्स एक्ट 2025. सो ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से. सो इसमें ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, दैट अर्लियर व्हाट वाज द लॉ इज दैट इफ यू आर अर्निंग एनी डिविडेंड इनकम, सो उसके अगेंस्ट आप 20% तक का इंटरेस्ट का एक्सपेंस ले सकते थे. इसका क्या मतलब हुआ कि इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाय टेकिंग अ लोन, तो आप उस लोन का इंटरेस्ट उस डिविडेंड इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते थे अप टू 20%. But now what the amendment has been done is that now they cannot adjust any of such interest expense. Even if you prove nexus, even if you say anything, आपको वो adjust करने नहीं दिया जाएगा. So now this is like a thing कि they are discouraging that आप लोन लेके इन्वेस्ट ना करें, आपके पास खुद का कैपिटल हो तो ही आप इन्वेस्ट करें. एंड प्लस प्लीज माइंड इट दैट इवन इफ यू आर डूइंग और शोइंग सच इनकम एज अ बिजनेस इनकम, जैसे कोई बोल दे कि नहीं मैं तो ट्रेडिंग का बिजनेस ही करता हूँ, मैं तो शेयर ट्रेडिंग का, तो मैं तो डिविडेंड इनकम को बिजनेस इनकम दिखा के उधर मैं अपना एक्सपेंस क्लेम कर लूंगा. सो प्लीज नोट दैट कि आप उसको डायरेक्टली, तो पहली बात है डिविडेंड इनकम को बिजनेस इनकम में शो नहीं कर सकते. There have been a provision जहां पे ये बोला गया है कि dividend income will be always considered as your income from other sources even if you are doing business of that thing. हाँ, इसमें आप ये जरूर सोच सकते हैं कि क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ शेयर ट्रेडिंग का, तो आई विल शो इट एज माई कॉस्ट इन P&L, और उसको मैं उधर से एज अ बिजनेस लॉस या किसी तरीके से एडजस्ट कर लूंगा अदर सोर्सेज के. दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट डायरेक्ट जो हम डिडक्शन करते थे बाय शोइंग इट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो अब नहीं हो पाएगा.
नाउ कमिंग टू दी बाईबैक चेंजेस, मतलब बाईबैक तो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इतने चेंजेस हुए हैं लास्ट कुछ सालों में कि नो वन कैन रिमेम्बर कि पहले क्या था अब क्या है, बिकॉज इतने लास्ट 10 साल में अगर आप देखेंगे तो इतनी बार बाईबैक के लॉ चेंज हो चुके हैं दैट वी आर नॉट श्योर। और अब जो ये लोग बाईबैक का लॉ चेंज करके लाए हैं अगेन अगेन इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 2025 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2026। और इसके अंदर बायबैक को अगेन दे हैव व्हाट दे हैव डन इज कि अब इसको डिविडेंड, अभी आपको याद हो तो 2 साल पहले इसके अंदर अमेंडमेंट किया था जहां पे उसको डिविडेंड के अंदर इंक्लूड कर लिया था। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसको बोल दिया ठीक है डिविडेंड नहीं है, हम इसको वापस कैपिटल गेन की कैटेगरी में डालते हैं। हाउएवर इन्होंने प्रमोटर्स के अंदर एडिशनल टैक्स लगा दिया कि अगर कोई प्रमोटर का शेयर बायबैक होता है तो उस केस में उसको नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्स तो देना ही है, उसके ओवर एंड अबव उनको ये वाला जो आपको टेबल दिख रहा होगा ये अमाउंट का या ये परसेंटेज का कैपिटल गेन टैक्स में और एडिशनल टैक्स देना है। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर प्रमोटर्स। अब इसमें प्रमोटर कौन होते हैं उसकी भी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो एज पर दी लॉज जो सेबी के लॉज हैं या जो उधर प्रमोटर्स डिफाइन किए गए हैं वो लोग प्रमोटर होंगे। और एक अनलिस्टेड कंपनी के केस में भी उन्होंने बताया है कि एज पर कंपनीज एक्ट के अंदर आपको जो प्रमोटर्स की डेफिनेशन है जिसके अंदर आप 10% से ज्यादा अगर होल्ड करें तो वो सब डेफिनेशंस ऑलरेडी है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द डेफिनेशंस। बट उन्होंने ये कहा है कि कोई भी प्रमोटर्स अगर सेल करते हैं बायबैक होता है उनका शेयर तो उनको ये एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा ओवर एंड अबव देयर नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप देखेंगे इतनी बार तो ये अमेंडमेंट हम ट्रैक कर पाए उतनी बार तो ये अमेंडमेंट हो चुका है इसके अंदर। जो 2013 के पहले था तब भी यही था कि कंपनी कोई भी टैक्स नहीं पे करती थी, जो टैक्स था वो शेयर होल्डर पे करता था। देन 2013 से लेके 2019 तक जो अमेंडमेंट था वो ये था कि इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी तो बायबैक टैक्स पे करती थी कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी 115 क्यूए के अंदर, और शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होता था। लिस्टेड कंपनी में अभी भी यही था कि आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। फिर 2019 से लेके 2024 तक सारी कंपनियों को कवर कर लिया कि सारी कंपनियों को ही बायबैक के ऊपर खुद से टैक्स पे करना है फ्रॉम देयर ओन पॉकेट एट द रेट ऑफ 20%। और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हाथ में वो एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर 2024 के अंदर वापस अमेंडमेंट कर दिया कि कंपनी पे करेगी टैक्स और उसके अंदर आपको डिविडेंड कंपनी टैक्स नहीं पे करेगी। यहाँ पे एक टाइपोग्राफिकल एरर है, कंपनी विल नॉट पे टैक्स, डिविडेंड माना जाएगा जो भी बायबैक का कंसीडरेशन होगा, और द शेयर होल्डर कैन क्लेम कैपिटल लॉस। और उसके बाद अब 26-27 में ये अमेंडमेंट ला दिया है कि शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी सारा जो टैक्स होगा शेयर होल्डर पे करेगा, कंपनी को कुछ भी टैक्स नहीं पे करना, और जो कैपिटल गेन टैक्स है वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर खुद पे करेगा। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो वी हैव जस्ट ट्राई टू क्रिएट एन इलस्ट्रेशन जहां पे आपको पता चलेगा कि नॉर्मल टैक्स रेट प्लस जो कैपिटल गेन टैक्स रेट मिला के है उसके हिसाब से कितना टैक्स रेट उनको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इधर देखेंगे तो इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी प्रोमोटर अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उनको 22% पे करना पड़ेगा। 22% कैसे बनेगा, एक तो हो गया आपका इधर अगर आप देखेंगे तो 12.5% तो आपको पे करना ही है प्लस 9.5%, तो उसके हिसाब से आपका बन जाएगा 22%। इसी तरीके से हर एक अगर आप पर्सन का देखेंगे तो इस तरीके से ये कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। इसके अंदर अगर कोई नॉर्मल शेयर होल्डर है जो प्रमोटर है तो इधर हमने अभी 40% लिखा है, हाउएवर दिस कुड बी एनीथिंग बेस्ड ऑन योर स्लैब रेट, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी के केस में शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा। तो ये 40% हमने जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इजीनेस हमने रखा है, बट ये स्लैब रेट पे होगा। अब इसमें यही कंफ्यूजन है कि अगर वो प्रमोटर है तो उसका स्लैब रेट कैसे गिनेंगे वो लोग, और प्लस उसके ऊपर ये एडिशनल जो इनको लगाना है 10% वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज समथिंग जिसको हमको समझना है कि एक मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी यूटिलिटी के अंदर, और फिर वो यूटिलिटी हम यूज करके अपनी रिटर्न्स भरेंगे। मैम ने जब बजट की स्पीच दी थी तब उन्होंने कहा भी था कि वी आर ट्राइंग टू मेक द इनकम टैक्स रिटर्न मोर सिंपल एंड मोर एफिशिएंट, ताकि फटाफट रिटर्न्स भरी जा सके। हमको पता है कि लास्ट ईयर जब ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे तब भी कितना लेट आईटीआर आए थे और कितना टाइम लगा था आईटीआर फाइल करने में, और सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई थी। तो इस बार जब वो बोल रहे हैं कि हम सिंपल करेंगे उसको और अच्छे से बनाएंगे, तो आई एम नॉट श्योर कि कितनी जल्दी ये रिटर्न्स आएंगी और क्या हम ये जुलाई वाली अगस्त वाली ये सब डेडलाइंस मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। So this is a small illustration. I think I'll just skip it for now because हमारे पास टाइम कम है और अमेंडमेंट्स काफी हैं और हमको जो कवर करने हैं। सो इसको आप लोग जब हम पीपीटी सबको शेयर भी करेंगे, जिन्होंने भी रजिस्टर किया है हमारे सेशंस के इसके लिए, उनको सबको मेल पे पीपीटीज भी आ जाएगी। सो वो भी आप टेंशन ना ले, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट हमने किया है।
नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जिसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है, अगर आप कहीं भी ऑनलाइन जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वालों के साथ धोखा कर दिया, दे हैव टू पे टैक्स एंड एवरीथिंग। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है अमेंडमेंट के अंदर। अगेन दिस इज एन अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट 2025, जहां पे ये बोला गया है दैट जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए, उसमें उन्होंने एक अमेंडमेंट डाला है जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये एग्जेम्पशन सेक्शन 47 में उसको एग्जेम्प्ट किया गया था, कि उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर किया गया था। सेक्शन 47 जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो अमेंडमेंट आया है उसका जो भी रिस्पेक्टिव इनकम जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का प्रोविजन होगा वो आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने जो 47 सेक्शन में से उसको एग्जेम्प्ट किया था कि दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, उसमें डाला गया था कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी पे ट्रांसफर करते हैं तो उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर रखा जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब इन्होंने जो अमेंडमेंट कर दिया उसके अंदर एक कंडीशन और ऐड कर दी कि ये एग्जेम्पशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सीधा आरबीआई से परचेज किया था। सो द पर्सन हु हैव परचेज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, एक तो पहली बात गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया था कि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, ओपन मार्केट में से ट्रेडिंग उसकी अलाउ की थी। नाउ दे आर मेकिंग अ प्रोविजन वेर इन दे आर सेइंग दैट, एंड दिस इज माइंड यू दिस इज दे आर सेइंग आफ्टर उन्होंने सारी जो भी पब्लिशिंग थी या जो भी नए इशू करने थे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वो सब इशू कर दिए, एंड उसको भी काफी साल हो गए, मतलब आई डोंट थिंक लास्ट 2-3 साल में कोई भी नया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का स्कीम आया है। तो उसके उसके रिगार्डिंग वो लोग अभी अमेंडमेंट ला रहे हैं कि नाउ इफ यू आर विड्रॉइंग और आपके कोई भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं एंड इट वाज नॉट परचेज डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई, तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नाउ आई एम नॉट श्योर कि कितना स्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस इज लाइक मेकिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, एंड अभी तक कोई इसके अंदर ग्रैंडफादरिंग नहीं दी गई है कि जो इंसान इस डेट के बाद परचेस करेगा उसको ही ये अमेंडमेंट लगेगा, या जिसने इसके पहले परचेस किया होगा उसको अमेंडमेंट लगेगा या नहीं लगेगा। देयर इज नो क्लैरिफिकेशन एज ऑफ नाउ ऑन दिस पॉइंट। सो अभी के लिए तो यही है कि जिन लोगों ने भी आरबीआई से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं लिया था उन लोगों को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा इवन इफ दे होल्ड द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड टिल मैच्योरिटी। नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसके अंदर उन्होंने एसटीटी हाइक कर दिया है। एसटीटी की जो रेट है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो पे करना पड़ता है आपको व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग इन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, उस केस में भी उन्होंने जो ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको इंक्रीज कर दिया है ऑन फ्यूचर्स ऑप्शंस। तो जो स्टार्टिंग से ही हमको पता है कि इन गवर्नमेंट कब से बोल रही है कि नो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और यू शुड नॉट डील इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक और तरीके से इसको, अब आई एम नॉट श्योर कि या तो ये चाहते हैं कि बहुत लोग उसके अंदर ट्रांजेक्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा और पैसा कमा लें, या दे वांट टू डिस्करेज इट। ये समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में जा रहे हैं, बट अभी के लिए ये है कि जो भी उसकी एसटीटी रेट थी उसको और इंक्रीज कर दिया गया है फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर, एंड नाउ द पीपल जो ऑलरेडी लॉस कर रहे थे वो शायद अब थोड़ा और लॉस करेंगे। ये लोग सब अच्छी बात है अगर लोग एफ एंड ओ छोड़ दे तो, क्योंकि काफी लोग जो करते हैं as we all know there are multiple reports which suggest 95-97% लोग पैसा गवाते ही गवाते हैं। So let's see कि इसके अंदर अब क्या होता है आगे when these STT rates are implemented। Now coming to some amendments in relation to assessment proceedings। अब इसमें भी जो अमेंडमेंट किए हैं एज वी ऑल सॉ, जैसे हमने हर्षिता वाले स्लाइड्स में भी देखा ट्रीपी के अंदर की काफी अमेंडमेंट्स ऐसे थे जो रेट्रोस्पेक्टिव थे। सिमिलरली हमारे भी यहाँ असेसमेंट में काफी ऐसे चेंजेस किए हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव है। तो उसमें सबसे पहला चेंज है विद रिगार्ड टू 144C सेक्शन। जो लोग भी थोड़ा बहुत असेसमेंट्स में या अपील्स में या लिटिगेशन में थोड़ा बहुत वर्क करते होंगे डायरेक्ट टैक्स में, उनको पता होगा काफी ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे, वन ऑफ विच वाज रोका बाथरूम एंड शेल्फ ड्रिलिंग। जहां पे शेल्फ ड्रिलिंग चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में रोका बाथरूम को मद्रास हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, कि जिसमें ये डिस्कस हुआ था कि 144C की जो टाइमलाइन होती है that should be covered under the टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 153। सेक्शन 153 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या है, वो डिफाइन करता है कि आपको कितना टाइमलाइन दिया जाएगा एक असेसमेंट को कंप्लीट करने में, और 144C एक सेक्शन है जो डिफाइन करते हैं कि डीआरपी के पास कितना टाइम है अपना ऑर्डर पास करने के लिए। नाउ जो 153 था वहां पे टाइमलाइन बताई गई थी लेट्स से 21 मंथ्स फॉर कंप्लीटिंग एन असेसमेंट। और उसमें क्या होता था कि पहले असेसिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर ड्राफ्ट ऑर्डर पास करता था, उसके अंदर वो टीपीओ के जो भी ऑर्डर होते थे उसको इनकॉर्पोरेट करता था, उसके बाद असेसी डीआरपी के सामने जाता था, डीआरपी अपना ऑर्डर पास करता था, और उसके बाद एओ अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करता था।
अब इसमें होता ये था कि एओ जो ड्राफ्ट ऑर्डर करता था वो ही 153 की टाइमलाइन तक करता था, उसके बाद डीआरपी को 9 मंथ्स और मिलते थे टू पास देयर फाइनल ऑर्डर। तो जिसका मतलब ये था कि जो 153 की टाइमलाइन थी वो कभी भी फुलफिल हो ही नहीं पाती थी, बिकॉज दे यूज्ड टू ऑलवेज सरपास दैट टाइमलाइन। अब जितने केस देखेंगे मैक्सिमम ऑफ द केसेस में यही होता था। अब उस वजह से क्या हो रहा था कि वेरियस पीपल वेंट टू सम हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, तो वहां पे हाई कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया था दैट दे हैव टू अडियर टू 153 टाइमलाइन बिकॉज इट इज अ बिगर अम्ब्रेला जहां पे असेसमेंट की टाइमलाइन गवर्न हो रही है। सो उन्होंने ये कह दिया था कि अगर आप असेसमेंट करवा रहे हैं तो 144C जो प्रोसीडिंग्स है डीआरबी की प्रोसीडिंग, दैट इज अ सब पार्ट ऑफ दिस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एंड देयरफॉर यू हैव टू फॉलो द टाइमलाइन ऑफ 153। However, now the Income Tax Department has made a retrospective amendment with retrospective effect from 1st April 2009, जहां पे ये बोला गया है कि जो 144C की टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड है वो अलग टाइमलाइन मानी जाएगी, और अगर 153 की टाइमलाइन तक अगर एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर पास कर दिया होगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ 153 की टाइमलाइन। सो जितने भी जजमेंट्स लोगों ने फेवर में लाए थे दिल्ली में, बैंगलोर में, कहीं भी और, वो सारे जजमेंट्स अब कोई काम के नहीं रहेंगे बिकॉज दिस अमेंडमेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इस अमेंडमेंट की वजह से जो जजमेंट्स पहले आ चुके थे उनको रिवर्स किया जाएगा या क्या होगा, बिकॉज जनरली वैसा नहीं होता, बिकॉज द जजमेंट्स वर गिवन based on the law which was prevalent at that time. आई थिंक रेट्रोस्पेक्टिवली अगर करेंगे तो एग्जिस्टिंग जजमेंट जो हो चुके हैं उनको रिवर्स या उनको चेंज नहीं किया जाना चाहिए। Now coming to another amendment which is again in relation to various cases which were done during the course of this time, जिसके अंदर आपको ध्यान हो तो 148A की प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई थी which was the proceedings before starting 148 का नोटिस। अब उसके अंदर क्या था, कई लोगों ने ये कहा था कि जो 148 की प्रोसीडिंग्स है दैट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल फेसलेस असेसमेंट स्कीम, जिसके अंदर अगर आपको 148 का नोटिस इशू करना है तो इट शुड बी इशूड बाय फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। ये कहा गया था कि बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल फेसलेस असेसमेंट स्कीम इट शुड बी इशूड बाय अ फेसलेस असेसिंग ऑफिसर, जबकि जनरली हो ये रहा था कि सारी जो 148 की नोटिस थी वो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही इशू करता था आफ्टर पासिंग द ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A ऑफ द एक्ट। तो इसकी वजह से कई लोग हाई कोर्ट में गए इसको लेके एंड बोला कि अगर 148 की नोटिस गलत है तो ये पूरी प्रोसीडिंग्स भी क्वॉश कर देनी चाहिए। नाउ अगेन टू ओवरऑल दिस जजमेंट्स, हेक्सावेयर का जजमेंट था बॉम्बे का, और भी काफी जजमेंट्स थे। हमने अभी जो जजमेंट्स लिए दोज आर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन, इसके अलावा हो सकते हैं और भी जजमेंट्स होंगे बट दिस वाज वन जजमेंट व्हिच आई कुड फाइंड। तो इसको ओवरटर्न करने के लिए द अमेंडमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वे ऑफ इंसर्टिंग अ सेक्शन 147A, जहां पे ये बोला गया है कि 148 एंड 148A दोनों नोटिसेस जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही इशू कर सकता है एंड नॉट अ फेसलेस असेसिंग यूनिट। उन्होंने बोला है कि 148 और 148 में जहां भी असेसिंग ऑफिसर वर्ड यूज हो रहा है दैट वुड मीन जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर एंड नॉट अ फेसलेस असेसमेंट यूनिट। और ये अमेंडमेंट भी रेट्रोस्पेक्टिव है फ्रॉम 1/4/2021 बिकॉज 1/4/2021 ही वो टाइम है जहां से वो फेसलेस की स्कीम और जो 148A की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। Now coming to another amendment which is again in relation to these judgments, document identification number। जो हम देखते थे डिन नंबर, हमारे ऑर्डर जो आते थे उसके ऊपर कई बार डिन नंबर प्रिंटेड नहीं होता था, हमको अलग से डिन नंबर का एक मेल या अलग से डिन नंबर अपलोड होता था पोर्टल के ऊपर। तो उसके अगेंस्ट भी बहुत लोगों ने जजमेंट करवाए और बहुत लोगों ने केसेस किया हाई कोर्ट्स के अंदर, जहां पे ये कहा गया था कि if an order is issued without a DIN number, it's not a valid order and the proceedings deserves to be quashed. Now they have again inserted a new section 292BA, जहां पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अगर डिन नंबर नहीं भी मेंशन्ड है या कोई भी ऐसा चीज मेंशन्ड है जिससे आइडेंटिफाइबल है वो ऑर्डर, तो उस केस के अंदर आप उस ऑर्डर को इनवैलिड नहीं बोल सकते। और इस चीज को अमेंड कर दिया गया बाय इंसर्टिंग अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 292BA। तो इस तरीके से जो भी जजमेंट्स थे जिसके अंदर कोई भी आपको ऐसा ऑर्डर मिल रहा था जिसकी वजह से आप टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं, मतलब कोई लीगल ग्राउंड पे नहीं, बट आप टेक्निकलिटीज के ऊपर या फिर प्रोसीजरल चीजों के ऊपर आप जजमेंट्स ला रहे थे, वो सारे प्रोसीजरल जजमेंट्स को इनकम टैक्स ने उल्टा कर दिया, उसको अमेंड कर दिया या उसको रिवर्स कर दिया। तो अब आपके पास 144C का टाइमलाइन हो या 147A का जाओ वर्सेस फाव हो या आपका 292BA का हो, इन तीनों केसेस के अंदर ही अब आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑल द अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड रेट्रोस्पेक्टिवली। Now coming to another thing which is a relaxation I would say in relation to Income Tax Act 2025 में ये amendment किया गया है
जहां पे उन्होंने ये बोला है कि if you are found with any unexplained cash credit, unexplained investment, unexplained money या undisclosed investment, जो भी आप 68 to 69 A B C जो हम देखते थे सेक्शंस, जो undisclosed income के सेक्शंस थे या वैसे सेक्शंस थे, उनके ऊपर अगर आपको ध्यान हो तो 60% टैक्स लगता था प्लस सरचार्ज, सेस एंड एवरीथिंग, तो इट वुड गो अप टू 78-80% ऑफ टैक्स। अब उसको वापस रिड्यूस कर दिया गया है, जो पहले रेट थी 2016 या 13 के पहले जो रेट चलती थी 30% की, उस पे ला दिया गया है कि अगर आपका कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम या अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अगर हमको मिलता है, तो उस केस में आपके ऊपर 60% नहीं बट 30% टैक्स चार्ज किया जाएगा। और ये अमेंडमेंट किया है सेक्शन 195 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का टीडीएस का प्रोविजन नहीं है, ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 का 195 नंबर का सेक्शन है, विच इज कोरोस्पॉन्डिंग सेक्शन टू 115 बीबीई ऑफ द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये एक वेलकम चेंज हो सकता है, जहां पे जिन लोग का भी अनडिस्क्लोज इनकम मिलता था उनको थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा टैक्स पे करने में। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू एनआरआई एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे, एक तो फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर स्कीम लाई गई है, एक फास्ट नाम से एक स्कीम लाई गई है, जहां पे ये लोग ये कह रहे हैं कि हम सबको पता है ब्लैक मनी एक्ट क्या है, जिसके अंदर अगर आप फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे या फॉरेन इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, तो उस केस में आपको 10 लाख तक की पेनल्टी लग रही थी। तो उसी के रिलेशन में ये लोग एक स्कीम लाए हैं, विच इज अ स्कीम की जहां पे आपको, अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं, अब इन्होंने अभी तक वो चीज डिफाइन नहीं की है, दे हैव जस्ट मेंशन्ड असेसी इन द स्कीम। ऑल्दो ये स्कीम अभी गैजेट में जाएगी, उसके बाद अप्रूव होगी एंड देन वो इम्प्लीमेंट होगी, तो इसीलिए इसका अभी जो इफेक्टिव डेट है वो हमको नहीं पता। बट ऐसी एक स्कीम आने वाली है जहां पे गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स थे, उनको अगर उन्होंने फॉरेन एसेट्स एज वेल एज फॉरेन इनकम अगर दोनों चीज डिस्क्लोज नहीं की है, तो उस केस में उनको हम लोग एक ऑप्शन देंगे कि जिसके अंदर वो लोग अपना फॉरेन इनकम एज वेल एज फॉरेन एसेट्स दोनों डिस्क्लोज कर दें। और तो इसके अंदर जब वो फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम दोनों डिस्क्लोज करना चाहेंगे, तो अगर वो एग्रीगेट वैल्यू 1 करोड़ से कम है, तो हम उनसे 30% टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट, 30% टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ इनकम एंड 100% ऑफ द अबव, मतलब ये जो 30% लगा है, इसका 100% और हम उनसे लेंगे। तो इतनी वैल्यू हम उनसे ले लेंगे एंड वी विल अलाउ देम टू फाइल दिस स्कीम एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अब आप देखिए कितना हैवी टैक्स लग रहा है आपको। 30% पहले तो लग रहा है वैल्यू ऑफ एसेट पे, फिर 30% लग रहा है फॉरेन इनकम पे, एंड देन इन दोनों का, क्योंकि अगर आप प्रोविजन का लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उधर बोला है 30% टैक्स ऑन एसेट, 30% टैक्स ऑन इनकम एंड 100% ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब आपको 60% का 100%, 120% आपको लग रहा है। बट अब वो देखते हैं, क्योंकि ये 30% ऑफ इनकम है, ये 30% ऑफ एसेट है, तो ऐसा नहीं है आपकी पूरी एसेट वैल्यू ले जाएंगे वो। बट नाउ वी हैव टू सी इन द डिटेल्ड रूल्स, जब इसका स्कीम का आएगा तो इसको ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको क्या एग्जांपल्स इसके ये लोग देते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स है जिन्होंने खाली एसेट डिक्लेयर नहीं की है, या फिर उन्होंने वो एसेट अक्वायर की थी जब वो नॉन रेसिडेंट थे, और जब वो रेसिडेंट बने तब उसको दिखाना रह गया उनका, और उसकी एग्रीगेट वैल्यू 5 करोड़ तक है, तो उस केस में उनको एक फ्लैट फी लगेगी 1 लाख रुपीज, और उसके बाद वो जा सकते हैं, फ्री हैं। तो अगर इसमें कोई बड़े एसेट्स हैं किसी के 1 करोड़ 2 करोड़ के, तो जो पहले उनको शायद 10 लाख फीस लगती, उससे आई थिंक ये 1 लाख की फीस थोड़ी बेटर है। तो जो लोगों के पास थोड़े से बड़े एसेट्स है, तो वो लोग शायद ये वाले एटलीस्ट फॉरेन एसेट्स वाली स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और 1 लाख की फीस पे करके अपना काम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ बताई गई है कि अगर आप इसके अंदर डिस्क्लोजर कर सकते हैं, तो आपको ब्लैक मनी एक्ट से इम्यूनिटी मिल जाएगी। वो इस स्कीम के अंदर बता दिया गया है कि आपको ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन लगता है या और कुछ लगता, उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। वो आपके ऊपर वापस इम्यूनिटी है, वो आपको वापस प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। हाउएवर, ये स्कीम वो लोग नहीं ले सकते जिनके ऊपर या तो पीएमएलए लग रहा है, या फिर उनके ऊपर एग्जिस्टिंगली और कोई ब्लैक मनी एक्ट का प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चालू है इन रिलेशन टू सच एसेट्स, तो वो लोग इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब एक आईएफएससी के जो यूनिट्स होती है उनके अंदर भी एक चेंज किया गया है, जहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए अमेंडमेंट किया है। आपको ध्यान रखना है,
for it is not been done for all types of IFSC units. It has been specifically done for banking units or units of scheduled bank, जहां पे ये बोला गया है कि उनको जो बेनिफिट्स पहले 10 साल मिलता था आउट ऑफ द 15 years, नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 20 years आउट ऑफ 25 years. अब पता नहीं क्यों ये सारी IFSC यूनिट को नहीं दिया, सिर्फ बैंक्स को दिया है. नो वन हैज एनी क्लैरिफिकेशन एज ऑफ नाउ, बट अभी के लिए जो प्रोविजन है वो तो यही है कि इट विल बी ओनली अवेलेबल टू शेड्यूल्ड बैंक्स एंड बैंकिंग यूनिट्स. नाउ सम अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू पेनल्टीज एंड पनिशमेंट. आई थिंक इसके बाद छोटा सा ही हमारा कुछ और थोड़े बहुत पॉइंट्स रहेंगे, एंड देन जल्द ही हम सारे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे यू कैन इवन रेज योर हैंड एंड वी कैन टेक योर क्वेश्चंस. अब इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है सेक्शन 220 के अंदर, जहां पे ये बोला गया है कि अगर आपकी ये सेक्शन प्रोविजन जो काम करता है वो काम करता है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, कि जो भी आपकी डिमांड पेंडिंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए प्रोविजन है. उसमें ये बोला गया है कि अगर आपका कोई भी पेनल्टी लेवी हो रही है आपके ऊपर, ठीक है ना, तो वहां पे जब तक आपके पास CIT अपील का ऑर्डर नहीं आ जाता और जहां पे आप DRP के रूट से जा रहे हैं वहां पे जब तक आपके पास फाइनल ITAT का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. नाउ ऑल्दो इट हैज नॉट बीन क्लैरिफाइड कि ये कौन से ऑर्डर्स के लिए वेट करेंगे पेनल्टी पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, वेदर इट विल बी द असेसमेंट क्वांटम ऑर्डर या फिर पेनल्टी ऑर्डर. हाउएवर क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हैं इन रिलेशन टू सच ऑर्डर, तो वी आर अज्यूमिंग दैट जब तक पेनल्टी ऑर्डर डिसाइड नहीं हो जाते फाइनल अथॉरिटी से तब तक ये लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. नाउ कमिंग टू अनदर सेक्शन 270A 270AA, जो मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर आप 148 के अंदर अपडेटेड रिटर्न भर देते हैं तो आपको 10% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा. सो देन दे हैव ग्रांटेड एन इम्यूनिटी, जहां पे ये बोला है कि अगर आप 10% एडिशनल टैक्स पे कर रहे हैं सो आपके ऊपर 270A की कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी. ठीक है, तो अगर आप एडिशनली 10% ऑलरेडी पे कर देते हैं तो आपको 270A की पेनल्टी से बेनिफिट हो जाएगा, आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. फर्दर आपको 270AA का इम्यूनिटी मिलेगा इन फॉलोइंग कंडीशंस, जहां पे टैक्स एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट आर पेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड. इन अ केसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग, टैक्स ऑन द क्वांटम ऑफ इनकम एंड 100% ऑफ द पेनल्टी आर पेड विद इन द पीरियड ऑफ डिमांड. तो अगर आप ये भी कर देते तो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी एनी अदर पेनल्टी से. नो अपील इज फाइल्ड इन रिलेशन टू द असेसमेंट ऑफ इनकम और द पेनल्टी ऑर्डर. एन एप्लीकेशन फॉर इम्यूनिटी इज फाइल्ड विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज पास्ड. तो अगर आप ये सब कर देते हैं तो जनरली पहले क्या था, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी नो immunity in relation to misreporting of income, because they were not granting any benefit of misreporting of income, but now they have granted those benefits to even misreporting of income, और उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी. नाउ दीज आर वेरियस प्रोसिक्यूशन प्रोविजन जहां पे जिनको सिंप्लीफाई किया गया है, जहां पे ये बोला गया है कि अगर पहले उनको इम्प्रिजनमेंट, कॉम्प्लेक्स इम्प्रिजनमेंट थी या रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी, उसको हम रिड्यूस करके सिंपल इम्प्रिजनमेंट करेंगे. Although we are not much into prosecution dealings or ऐसा सब, but we have just covered it for the sake of completeness. तो ये कुछ sections हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हैं, जिसके अंदर उन्होंने कुछ amendments किए हैं with regard to prosecution and such kind of punishments. Now coming to some of the last amendments with regard to TDS and TCS provisions. सबसे पहला amendment which I think is a welcome change, although उसका effective date बहुत late है, 1st of October 2026 है. However, I think it's a welcome change wherein जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि अर्लियर क्या होता था कि अगर आप एक रेसिडेंट हैं और आप एक दूसरे रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो आपको 26 QB फॉर्म भरना पड़ता था, और वो एक पेन बेस्ड फॉर्म था, आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं थी इवन टू डिडक्ट TDS. हाउएवर दिस बेनिफिट वाज नॉट अवेलेबल जहां पे आपका जो सेलर है वो नॉन रेसिडेंट होता था, तो आपको 10 नंबर लेना पड़ता था इंडिया में, आपको TDS कट करना पड़ता था और 27 Q फॉर्म फाइल करके उसका टैक्स जमा करवाना पड़ता था. नाउ दे हैव प्रपोज्ड एन अमेंडमेंट जहां पे ये बोला गया है कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF जो एक नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसको 10 लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने पेन बेस्ड पे ही पेन के ऊपर ही TDS जमा करवा सकता है ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स का. अब जब इसकी बजट की स्पीच हो रही थी तब मैडम ने कहा था कि दिस विल बी इन रिगार्ड टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. हाउएवर अभी जब हम फाइनेंस बिल पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बोला गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी तो सारी टाइप की प्रॉपर्टी कवर हो जाती है उसके अंदर एज ऑफ नाउ, और प्लस इसके अंदर हमको एक और चीज ध्यान रखनी है कि दे हैव ओनली कवर्ड रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF.
ठीक है ना। तो अगर कोई कंपनी परचेस करती है नॉन रेसिडेंट से, या फिर कोई और नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट से परचेस करता है, तो वो सारे सिनेरियोज यहाँ पे कवर नहीं होंगे। और उसके अलावा अगेन माइंड यू कि ये खाली ये लोग बोल रहे हैं कि पेन बेस्ड होगा, हाउएवर यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि उसको हम 1% टैक्स रेट में ही लेके जाएंगे जो रेसिडेंट्स को लगता है। तो जो टैक्स रेट है वो तो हालांकि हो सकता है कि अभी भी 12.5% ही रहेगा, बट उसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। करंटली व्हाट दे हैव जस्ट मेंशन्ड इज दैट इट विल बी अ रिलैक्सेशन, जहां पे उनको 10 नंबर नहीं लेना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ टीसीएस के रेट्स भी कम कर दी गई है। जैसे ओवरसीज टूर पैकेज की रेट जो 5% थी उसको 2% कर दिया गया है। एजुकेशन मेडिकल वाले एक्सपेंसेस के लिए भी जो 5% की टीसीएस की रेट थी उसको भी 2% कर दिया गया है। एक टीसीएस रेट इंक्रीज भी हुई है, जहां पे स्क्रैप अगर आप करते थे या एल्कोहलिक लिकर करते थे या फिर आप मिनरल्स करते थे सेल, तो उसके ऊपर आप आज तक 1% कर रहे थे टीसीएस कलेक्ट। नाउ यू हैव टू कलेक्ट 2%। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं जहां पे वो लोग स्क्रैप सेल करते थे अपने मैन्युफैक्चरिंग का और उसका वो लोग टीसीएस कलेक्ट करते थे, तो वो आज तक 1% करते होंगे, अब उनको 2% करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। सो प्लीज रिमेंबर कि जब भी आप कोई भी टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो तो यू हैव टू यूज द न्यू रेट्स। एंड अभी हम लोग जो इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि मैं वापस पढ़ रहा था फॉर दिस अमेंडमेंट्स एंड एवरीथिंग टू लुक एट कि 393 सेक्शन होता क्या है टीडीएस टीसीएस का। तो आई बिलीव कि जो हमारा पहले सेक्शन नंबर अलग अलग थे उसके अंदर रीड करना इट वाज मच इजियर, जबकि मैं अभी जब देख रहा हूँ तो उसके अंदर वो एक तो पहली बात वो टेबल का रेफरेंस देते हैं, फिर उस टेबल से अंदर हमको सीरियल नंबर में जाना पड़ता है। तो आई एम नॉट श्योर हाउ इजी इट वुड बी फॉर ऑल ऑफ यू, बट मेरे को तो उतना इजी नहीं लग रहा अभी के लिए वो देखना। नाउ कमिंग टू अ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, इसमें कुछ मेजर अमेंडमेंट नहीं है। इसमें उन्होंने खाली बोल दिया कि पर्सन कैन नाउ मेक एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन और उसको इलेक्ट्रॉनिकल ही वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन लिख दिया गया है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई मेजर अमेंडमेंट है। हालांकि आज भी वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होता था, बट कई बार आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। अब एज पर दी बुक्स आपको नहीं जाना पड़ेगा, बट वी आर नॉट श्योर कि ग्राउंड लेवल पे कितना इंप्लीमेंट होता है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन टीडीएस, जहां पे ये बोला गया है कि सप्लाई ऑफ मैन पावर विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्क। जो 194 सी की डेफिनेशन थी हमारी वर्क की, उसके अंदर अभी तक मैन पावर को स्पेसिफिकली कवर नहीं करते थे। हाउएवर जो भी हम लोगों से डिस्कस करते थे या कोई भी क्वेरीज आती थी, वी यूज्ड टू से कि मैन पावर सप्लाई भी 194 सी में कवर होना चाहिए था। बट कुछ कंफ्यूजन थी कि क्या हर टाइप का मैन पावर 194 सी में होना चाहिए, बिकॉज इट वॉज नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ वर्क, या फिर टेक्निकल या प्रोफेशनल वालों को 194 जे में डालना चाहिए और बाकियों को 194 सी में। तो अभी जो एक डेफिनेशन दी गई है वो ये बोला गया है कि सप्लाई ऑफ मैन पावर विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्ड वर्क, एंड देयरफॉर एनी टाइप ऑफ मैन पावर सप्लाई शुड बी कवर्ड अंडर 194 सी। जो अभी मेरी रीडिंग आ रही है, हो सकता है ये लोग इसके अंदर से जो टेक्निकल सर्विस वाले होते हैं लोग, या फिर जो इंजीनियर का मैन पावर सप्लाई होता है इंजीनियर्स का, उसको शायद अभी हटा दे, या जो भी फाइनल हमारे पास फाइनेंस एक्ट आएगा उसमें कुछ और चेंजेस हो जाए। बट एज ऑन डेट जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वो यही है कि सप्लाई ऑफ एनी काइंड ऑफ मैन पावर वुड बी कवर्ड अंडर 194 सी, जो 1% और 2% टीडीएस लगता है। एंड ये भी एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से। 15GH की एप्लीकेशन इजी कंप्लायंस कर दिया, जिसमें इन्होंने बोला है कि आपको हर एक कंपनीज को जहां पे आप शेयर्स होल्ड करते हैं उनको या म्यूचुअल फंड्स को एक एक करके देने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल 15GH दे सकते हैं डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नाउ इट बिकम्स एन इशू फॉर डिपॉजिटरी कि वो कैसे सब म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट लेट्स सी ये कैसे होता है। उसके अलावा छोटे मोटे और अमेंडमेंट्स हैं कि पीएफईएसआई के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट दे दिया है कि जो पहले इशू था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नीड्स टू बी डिपॉजिटेड विद इन द टाइमलाइन ऑफ पीएफ एंड ईएसआई लॉ, अभी उसको ईज ऑफ कर दिया गया है। उसको बोल दिया है कि आप रिटर्न फाइलिंग तक भी अगर जमा कराएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। हाउएवर दिस अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो अभी तक जो केस चल रहा था, चेकमेट का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो आज भी होल्ड करेगा टिल द डेट ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाता है। तब तक तो आपको, जब तक अगर आप टाइम पे जमा नहीं करवा रहे थे एज पर द पीएफआई ईएसआई लॉ, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक क्लाउड कंपनीज वाला हर्षिता ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो टैक्स हॉलिडे अनाउंस किया गया है। एग्जाम्पशन ऑन अवार्ड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ये भी एक थोड़ी सी एनोमली थी, जहां पे वो क्या होता था कि जिसकी मोटर एक्सीडेंट में क्लेम होता था किसी का एक्सीडेंट की वजह से, और उनको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता था उसको भी टैक्सेबल कई बार मान लिया जाता था, और उसको भी उसके ऊपर भी टीडीएस कटता था फ्रॉम द
from the insurance company जो उसको पे करती थी insurance. However, now it has been clarified by the income tax department कि ऐसा कोई भी interest आएगा, पहली बात तो वो exempt होगा, और दूसरी बात उसके ऊपर कोई TDS नहीं कटेगा. So now everyone would be thanking to the income tax department कि आपने मुझे इतना relief दे दिया. Although there were various judgments जो इसके ऊपर discussion करते थे already, but there were various negative judgments also जहाँ पे इसको taxable बोला गया था. एक अमेंडमेंट है मैट के अंदर. आई एम नॉट श्योर आज के डेट में कितने लोग मैट के अंदर होंगे. हाउएवर देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट जहां पे ये बोला गया है कि जो मैट की रेट है वो रिड्यूस कर दी गई है 15% से 14% पे. फिर उसके अलावा ये बोल दिया गया है कि जो मैट का क्रेडिट अलाउ होता था, जो पहले आप एनी अमाउंट तक कर सकते थे, उसको रिड्यूस कर दिया गया है कि नाउ यू कैन ओनली सेट ऑफ मैट अप टू 25% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी. उससे ज्यादा आप एक साल के अंदर उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अमेंडमेंट हुआ है जो नया लॉ आने वाला है. उसके अंदर उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में से जो लोग भी एसईजेड यूनिट थे उनको पहले हटा दिया गया था प्रिजम्पटिव के बेनिफिट से. अब उसको वापस इंक्लूड कर लिया गया है. इसका मतलब कोई एसईजेड यूनिट अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहती है 44AD का, तो वो ले पाएंगे. So I think this was all from our side. You can connect us with us on LinkedIn and as well as our WhatsApp group. जो भी आपको queries रहेगी, we can discuss there. And इस session के बाद भी अगर आपकी कोई queries रहती है, तो we are always there. All of us are there to respond to your queries. And thank you very much for joining this session of budget amendments. So now over to you, Divyam. Thank you, Naman sir, and all our speakers for their insightful presentations. We will now take up the questions received from the audience. If you have not already done so, you may post your questions in the Q&A box, or you may even raise your hand and we will take them. I think there was one question from Pulkit Sobani and it has been already answered by Harshita. Yes. अगर और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मे बी यू कैन रेज योर हैंड. अगर आपको Q&A में कुछ इशू आ रहा है डालने में, तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. विल जस्ट अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. इधर टाइम अगर किसी क्वेश्चन आते हैं, नमन श्रीमल सर, व्हाट वर योर थॉट्स कि जो आपको लग रहा है बजट के अंदर कुछ, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस जब आप दूसरे लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कुछ इट इज बेनिफिशियल और व्हाट टू एक्सपेक्ट. No, so as I said, I will maintain what I said in the starting that again the budget, and frankly I had expected less than this because of the advent of the IT Act 2025, but this brought in a lot many changes. I would say, this retrospective amendment is not something which should be taken in a normal way. I remember when the government came, it specifically said that we will not bring any retrospective amendment whatsoever. But maybe earlier bad drafting or anything, even if you want to pick up pieces now, it's not good in a manner retrospective amendment. Something like a sovereign gold bond. Somebody who has purchased this in keeping in mind that it will be a tax-free income when I will sell this, all his calculation will go in vain. So suddenly you change this up, this is something which should not be brought, though government has very rightly brought in some of the important changes which were there, but I would believe this retrospective changes should not be part of the and we have seen this many times where the revenue is losing and they would make these changes. So the pillar of the democracy of, let's say, judiciary versus the executive, we need to be mindful of that fact that yes, judge will make laws depending on the way they read it, but executive cannot just come and just say that, okay, it had to be read in such a manner from such a date. You may change it prospectively that it has to be read in a such a manner. They have all the parts, but it had to be read from last 17 years and 18 years in such a manner. That is something which should not be there. I think that is what the people are generally discussing. Rest, I think if we
I would say that this Income Tax Act 2025 itself was a great opportunity for the government to overhaul a lot many things, and bring a new tax mechanism. 1961, the whole, more than 60, 70 years now, the whole way of doing business has been changed. The whole way of doing things have been changed. So something like a big overhaul was required, which was an opportunity being missed. But let's see how it goes further. So we may take up questions if there are any now. I think there was one question in chat as well. Is there any clarity on the form or returns for PAN-based where 10 will not be required for immovable property? So I think अभी क्या हुआ है, the Income Tax Act 20, first of all ये amendment किया गया है Income Tax Act 2025 में. It is not an amendment in Income Tax Act 1961. तो therefore क्या है, Income Tax Act 2025 का अभी भी कोई भी रूल्स या कुछ भी अभी तक नहीं अनाउंस किया गया है. सो जब तक वो रूल्स या कुछ भी नहीं आते तब तक वी कैनॉट रियली से कि इसके लिए क्या फॉर्म आएगा या कोई नया फॉर्म आएगा. सो आई थिंक वील हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं. एज ऑन डेट देयर इज नो फॉर्म फॉर सच पीपल की जहाँ पे ये कुछ ऐसा डिस्कस हम कर सके कि किस फॉर्म के बेस पे आप पेन बेस्ड कर पाएंगे. इसके अलावा आई थिंक एक पॉइंट और था जो आया था, एक क्वेश्चन हमको कि इसके अंदर क्या बोला गया था दैट अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं देर आर वेरियस अमेंडमेंट्स विच आर रेट्रोस्पेक्टिवली डन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब whether this amendment will as it is fall in the income tax act 2026 or not, that is also again in question. What are your thoughts, Naman Shima sir? I don't know. We need to see, because they were only in 2026 Act. If we read 25, they will not appear. So how they will carry forward in the 26 Act or 25 Act, we would need to see. Maybe further amendments would be notified into it. Because if you made changes in the 1961 Act, which will not be there from 1st April, how can they be carry forward? That is needs to be seen. Maybe some amendment would be required in 2025 as well of a similar nature. Correct. And even that उसके at अलावा ESIPF, I would say, if you made in 2025, and as you rightly pointed it out, for last year, if I made that mistake, you will not allow. But you have already announced it for next year, that it's fine, you pay till due date. So being beneficial provision, can I still take chance even after having checkmate decision against me? Can I take that chance out? No, this is a beneficial provision. Now government is allowed from next year. Please allow me from previous year as well. Because this was always used to be the case. So I think that is something which would be there. I think वो वैसा भी है that there have been instances also even after checkmate the revenue is applying the checkmate very blindly, but however there have been instances where you can distinguish that why there was a delay. If there was genuine delay, there was a Sunday or anything, there have been instances in Delhi tribunal and other tribunals wherein they have allowed such kind of delay. So I think that it should be allowed. सो उसके अलावा कुछ एक दो क्वेश्चंस और आए हुए हैं इन द चैट बॉक्स एज वेल एज अ Q&A. तो चैट बॉक्स में आई थिंक एक क्वेश्चन है whether late filing fees of audit report provision is retrospective or not. I think it is with regard to the 3CB form, I am assuming, because tax audit में तो कोई चेंज नहीं आया है. So Harshita, is it retrospective or? It's not retrospective. Okay. Not retrospective. ओके सो इट इज प्रोस्पेक्टिव. जिस दिन से वो एप्लीकेबल हो जाएगा शायद उस दिन से ही वो लेट फी लगाना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एज ऑन डेट तो वैसे भी देर इज पेनल्टी, देर इज नो लेट फीस. ठीक है. उसके अलावा एक क्वेश्चन है विशाल जी से, एनआरआईज नीड टू डिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स व्हाइल फाइलिंग आईटीआर और इज इट ओनली फॉर एनआरआईज हु हैव रिटर्न्ड बैक? सो फॉरेन एसेट्स का जो डिस्क्लोजर है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड दैट टू रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ऐसा भी नहीं है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करना है. सो दिस इज स्पेसिफिकली जो डिस्क्लोजर स्कीम आई है उसके अंदर जो पॉइंट कवर किया गया है वो ये कवर किया गया है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट जब वो बाहर था, आउट ऑफ इंडिया था, तब उसने कोई फॉरेन एसेट लिया था एंड देन व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया एंड ही बिकेम अ रेसिडेंट अगेन, तब वो डिस्क्लोज करना अगर भूल गया है तो उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा. इसके अलावा एक क्वेश्चन था, कैन रिवाइज रिटर्न बी फाइल्ड फॉर एवाई 25-26 अप टू मार्च 26? अब देखो जो अमेंडमेंट हम देख रहे थे, देयर इट वाज मेंशन्ड दैट दिस अमेंडमेंट शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of March 2026. Correct. So I am assuming that it should be available
although it will depend on कि ये बजट पहली बात है कब पास होता है, because to make any amendment applicable from 1st of March, I believe that they need to first get the finance bill converted into a finance act by the 1st of March 2026. Although वो अगर उसके बाद भी करेंगे तो it can be made effective from 1st of March. However, then वो लोग के पास टाइम ही नहीं बचेगा रिटर्न फाइलिंग के लिए. जनरली व्हाट वी हैव सीन इन आवर एक्सपीरियंस अर्लियर आल्सो कि मार्च मिड तक या अप्रैल स्टार्ट में जनरली फाइनेंस बिल्स एक्सेप्ट होते थे या फाइनेंस बिल्स फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होते थे. बट करंटली क्योंकि इन्होंने बोला है कि वील मेक दिस इफेक्टिव फ्रॉम 1st of March 2026, सो आई एम अज्यूमिंग कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स इट शुड गेट एक्सेप्टेड. They have that confidence. That's all. They have that confidence from the past experience. Yes, yes. I think एक और क्वेश्चन है. Just a moment, I'll just check the Divyam, if you can take that from chat. Yes, That there is will- another question from Tejas Shah. He asks if investments made through InMoney platform by resident individuals, if they forget to report an ITR, what will be the penalty for that? So Tejas, I think it will be the same penalty क्योंकि again if you are investing through InMoney, I'm assuming that you are investing in foreign assets, and in that case अगर आप foreign assets में invest कर रहे हैं, even if you are investing through any of the platforms, वो platform हो सकता है government को report कर रहे होंगे, but it was your responsibility also to report it in your ITR. तो if you are not reporting, आपको Black Money Act का penalty देना पड़ेगा, जो 10 लाख का penalty as on date exist करता है, वो पेनल्टी आप पे लग सकता है, प्रोवाइडेड आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जो पेनल्टी लगाने का वो मैच हो रहा है. अगर वो नहीं हो रहा तो यू कैन स्टिल सेव योरसेल्फ फ्रॉम द पेनल्टी. थिंक लास्ट 1 or 2 minutes हम वेट कर लेते हैं. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड. आई थिंक अदरवाइज दिव्यम वी कैन wrap the session. If still anyone has any questions, maybe you can raise your hand or put it in chat box or Q&A. If there is I think a question. If we are going to launch an Indian brand outside India and assign this job to a foreign company for advertisement, what is the GST applicability? ये Q&A में- Keshav? So I think that if we are going to launch an Indian brand outside India and assign this job to a foreign company for advertisement, what is the GST applicability? So I think this is a P2P transition because foreign company which is going to so it's like an Indian brand which is launched outside India, and this particular job is assigned to a foreign company for advertisement. So that advertisement company will charge its own GST level they are supposed to charge. And in that case, because advertisement company is located outside India and we are inside India, so they may be liable to pay GST in a reverse charge on this advertisement expenses. One thing. Secondly, since we are launching our Indian brand outside India, and I'm sure I think the case would be that we'll be making export sales. So in that case, जो हमारा सेल होगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, और उससे जो भी हमको रिफंड्स वगैरह के प्रोविजंस है वो हमको रिफंड वगैरह की एलिजिबिलिटी रहेगी सारी. बट एनी एक्सपेंडिचर विच यू आर इनकरिंग आउटसाइड इंडिया and which you're paying to entity outside India, that may be liable to GST in a reverse charge. I think there is one more question from Ankur. Ankur ji, exemption to a foreign company on any income arising in India by way of procuring data center services from a specified data center. I am not sure if I am not able to get the query. Naman Shimal, sir, are you able to get the query? मतलब ये query No, मेरे को समझ नहीं है. it's like more like a statement. So that's the scheme they have announced. We need to see because it's tax-free till that 2047 data center. So Correct. we need to see how it will work out. Correct. अगर कुछ और आपकी query है अंकुर जी, तो if you can maybe unmute yourself and raise the hand, we'll unmute you and you can ask the query if you have any other query.
Divyam, I think we have taken all the queries and now we have also surpassed the time. So maybe you can just give a vote of thanks and So I think that was all. Thank you everyone for tuning in. In case you missed anything, we will also be sending all the PPTs and the recorded meeting to your registered email addresses. Thank you for joining in. Thank you to all the speakers and all the audience. एंड कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों को बाद में भी आती है, द JS4 टीम विल ऑलवेज बी देयर कि आपको जो भी क्वेरीज आती है यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आइदर ऑफ आवर ईमेल आईडीज एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. Thank you everyone. Thank you. Thank you, everyone. Have a Thank you. wonderful day. Thank you. Bye-bye.